हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सेप। ये है एपिसोड नंबर 7। लास्ट वीडियो में हमें हमारा 4th जिम बैज मिला था। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने हमारे पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। मैंने सभी को लेवल 22 का किया है। और मैंने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ा है। ये है क्रोगंक, एक पॉइजन और फाइटिंग टाइप। ओके, तो चलते हैं। अब डार्लो यहाँ पर रुका है, हम उससे बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ओ देयर यू आर ऐश। You see, I was waiting for you to show you my hometown, and well, my grandma is kind of curious, and I team up back there against Team Void. We should get going. It's better talking in a cozy house than on the street. Am I right? Okay, तो अच्छी बात है, घर में ही बात कर लेते हैं। I am home and brought a friend with me. Welcome back, Darlo. So, do you happen to be Ash, right? I was very worried about him when I heard he had trouble with a criminal gang, but he mentioned you helping him. And since he wasn't injured or anything, you help must be very useful. Your journey is so nice. Many meeting new people, making new friends, and helping out each other. That's so great about them. Oh, Darlo, does Ash know about your condition? Well, I plan telling Ash it is okay if I do. Of course, Ash look like someone who can be trusted. तो ये शायद अपनी बैक स्टोरी बता रहे हैं हमें। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आफ्टर द शैडो क्रिस्टल वॉज क्लीन, डार्कराय रिलीज द पीपल इट कैप्चर, हाउ एवर they were unlucky ones who remained stuck in the shadow. When the crystal was moved to Colin, scientists started researching the crystal because it seemed like the key to finding the people who disappeared back then lie inside the shadow crystal. They were sort of right. One day the shadow started rinsing to something and a kid fell out from the crystal. That kid was me. They were very confused, but it gave them hope that maybe just they can do something. They asked several things for me, but sadly I couldn't answer a single one of them. I didn't remember a thing from the time I could hold captive inside. However, one of them asked something interesting, something I actually could answer. One of the scientists asked me something that seems rather personal than technical. Have you heard a man's voice like this? After asking me, he played a voice memo from that man. He said his father of he needs to know. I didn't seem or remember a thing. However, I heard things voices to be exact. Though I didn't understand those people said, and it felt more than a dream than a memory, but that was enough for them. After the question came to an end, they examined me and they bumped into something strange. I had a condition that they have never seen or imagined before. It's kinda hard to explain, but simply the atoms in my body can't hold themselves together like how normal matter should. The doctor were too hopeful. Since a condition like this was so new, a cure was more than impossible. They couldn't determine the strength of how it affects my body, so they couldn't speculate too well. They said it might not affect me in a bad way at all, but they also said there are chance that it will kill me. They weren't really sure, so they didn't tell me real facts, only possibilities. Well, I am 9 years later. I'm still fine. Your body is struggling keep itself together, but I was now here near death so far. I hope everything is bit more clear now. I'll get going. The sixth gym is right in this town. What a lucky situation for me. After we both obtain the badge, we should definitely battle to who is stronger. ओके, तो ये हमें हमसे फिर से बैटल करना चाहता है। तो हमें तो उसकी स्टोरी अब पता चल गई है। तो हम सबसे पहले टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। द फ्लावर शॉप हैज़ अ सच ब्यूटीफुल फ्लावर। आई विश अ बॉय वुड गिफ्ट मी। ओके, तो इस घर में देख लेते हैं। आई एम अ पोकेमॉन मैनिक। ओके, तो हमें कुछ सीखना तो नहीं है। अगर आपको अपने पोकेमॉन को कोई मूव सिखाना है तो आप इसे एक मशरूम दे देना। देखते ये क्या कहती है।
तो ये बेरी सेल करती हैं, तो बेरी बहुत काम की होती हैं, तो आप इसे ज़रूर ख़रीदना। तो मैं ये ख़रीद लेता हूँ मिनिमम, ये बहुत ही सस्ते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर ख़रीदना। ये अवेकनिंग के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, मार्ट के आइटम्स के मुकाबले, तो मैं इसे 20 ख़रीद लेता हूँ। ओके, और फिर बाद में देखेंगे, मे बी इतना इनफ है। अब देखते हैं टाउन को एक्सप्लोर करके, देखते हैं इससे बात करके। रूट 7 हैज़ अ ह्यूज फ्लावर फील्ड, आई लव कलेक्टिंग फ्लावर्स। यहाँ पर क्या है, इस बग कैचर से बात करके देखते हैं। आई कलेक्ट बग्स बिकॉज दे आर ईजी टू रेज। अब ऊपर चल के देखते हैं इस घर में। वेलकम टू द ग्रोवर फ्लावर शॉप, वी शल द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड द कॉलोन। ओके, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पर हम शायद जा सकते हैं कि नहीं, देखते हैं। ओके, जा सकते हैं, लेकिन ओके, तो वहाँ पर एक जिम था, तो हमें जिम लीडर से शायद बैटल करनी है, तो शायद नीचे है, देख लेते हैं। ओके, तो जिम यहीं पर है। ओके, तो हम जिम लीडर से पहले बैटल करते हैं। तो गाइज ये ग्रास टाइप जिम है, तो मैंने फ्लेचिंडर को फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लिया है, देखते हैं इससे बात करके। वेलकम टू द ग्रोवर जिम, यू कुड प्रोबेबली ऑलरेडी टेल दैट दिस इज़ अ ग्रास टाइप जिम फ्रॉम द नेचर यू सी हेयर। इफ़ यू गॉट दिस फार आई एम श्योर यू कैन फेस द ऑब्स्टिकल यू आर अबाउट टू फेस हर, गुड लक चैम्प। तो चलते हैं, देखते हैं इनके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं। वैसे मैंने तो जस्ट अपने पोकेमॉन को लेवल 22 का ही किया है, और आप देख सकते हो ट्रेनिंग करने के बाद भी हमारे पोकेमॉन बस इनके इक्वल ही हैं। नो प्रॉब्लम, हमारा फ्लेचिंडर अब लेवल अप हो जाएगा इन्हें हरा कर। तो नेक्स्ट एक ग्लूम आ रहा है, तो इसे हम एम्बर ही देंगे, तो उसका लेवल हमसे ज़्यादा है। आप देख सकते हो वो लेवल 23 का है और हमारा पोकेमॉन 22 का। ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसे फेंट कर देंगे। वैसे एक एम्बर में फेंट हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अब। तो नेक्स्ट एक चेरो भी है, ये एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है, हम इसे एम्बर ही देंगे। ओके, तो इसने लीच सीड का यूज़ किया और हमारी एनर्जी को ये ड्रेन कर रहा है। ओके, एक और पीक देंगे हम इसे, ये फिर फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, ये फेंट हो गया और फ्लेचिंडर लेवल 23 का हो गया है। तो गाइज मैं पोकेमॉन सेंटर जाकर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज चलते हैं अब आगे, तो हम सभी से बैटल करेंगे, हमारे पोकेमॉन भी थोड़ा लेवल अप हो जाएंगे। तो इसके पास एक ही पोकेमॉन है आइविसॉर, और इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेवल 24 का है ये। ओके, इसका स्लीप पाउडर अटैक मिस हो गया, एक अच्छी बात है, और हम इसे जल्दी से हरा देते हैं। नेक्स्ट टाइम हम पीक का ही यूज़ करेंगे, हमें इसे हराने में भी ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई। और अब कितने ट्रेनर बचे हैं देखते हैं, एक और ट्रेनर है यहाँ पर, कर लेते हैं इससे भी बैटल। तो इसके पास एक बग और ग्रास टाइप है, तो मैं इसे पीक ही देता हूँ। ओके, इसने हिडन पावर का यूज़ किया, ये हम पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, एक एम्बर में ये फेंट हो जाएगा। ओके, देखते हैं ये कब तक हमें परेशान करता है। ओके, इस बार हिट हो जाएगा और ये फेंट होगा। बहुत अच्छे, फ्लेचिंडर लेवल 24 का हो गया है। तो एक डर्लिंग आ रहा है, तो हम इसे एम्बर देंगे। इसने टेक डाउन का यूज़ किया, वैसे उसका अटैक 90 है, एक पीक में फेंट हो जाएगा। देखते हैं और कितने ट्रेनर हैं, हमने फ़िलहाल तो 3 को हरा दिया है, तो एक और ट्रेनर है यहाँ पर।
तो नीचे भी एक और ट्रेनर था, तो हम सभी को हराएंगे, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसे पीक देता हूँ, क्योंकि वरी सीड का तो कुछ असर नहीं होगा। एक और पीक, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है अब। तो नेक्स्ट एक सर्वाइन है, ये एक यूनोवो का स्टार्टर पोकेमॉन है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इस बार हम इसे एम्बर देंगे। इसने लीच सीड का यूज़ किया, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करेगा, एक एम्बर में फेंट हो जाएगा। और फ्लेचिंडर लेवल 25 और ये सीख रहा है रोस्ट, तो हम किसे हटाए देखते हैं। तो हम फ्लेल को हटा देते हैं, वैसे ही कुछ काम का मूव तो है नहीं। उसका अटैक जस्ट 20 है, हम उसे रख कर क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक और ट्रेनर है, ओके। तो ये जिम लीडर है, तो मैं अपने फ्लेचिंडर को हील कर लेता हूँ। शायद मैंने सुपर पोशन ख़रीदा था, तो मैं उसी का यूज़ कर लेता हूँ और हम इससे डायरेक्ट बैटल कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। हे देयर एंड वेलकम टू ग्रोवर सिटी जिम। आई एम नैरमोनी द जिम लीडर। Years ago, I was a Pokemon Ranger in the Fior region and I really loved doing it. Being in nature around many Pokemon, helping and working with them, it's like a dream. But recently, I moved to the Kolen region and I was asked to be a grass type gym leader here. Of course, I couldn't say no. Okay, तो हम सीधा बैटल ही कर लेते हैं। तो इसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं देखते हैं। तो इसके पास 4 पोकेमॉन हैं और सभी के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं पीक का यूज़ करूँगा और क्रिटिकल हिट बहुत अच्छी बात है। ओके, फिर से एक पीक ही दूंगा मैं इसे। तो इसने हाइपर पोशन का यूज़ किया, इसने अपना स्पेशल अटैक बढ़ा लिया है। ओके, इसका अटैक मिस हो गया, तो इस बार एम्बर, बहुत अच्छे। तो फ्लेचिंडर अपने फाइनल एवोल्यूशन में अब लेवल 35 पर आएगा, तो मैं इसे देता हूँ पी, क्योंकि इस पर फायर टाइप अटैक सुपर इफेक्टिव नहीं, इसकी टाइपिंग है वाटर और ग्रास, इसलिए बहुत अच्छे। इसने इसे भी फेंट कर दिया और फ्लेचिंडर लेवल 26 का हो गया है। तो एक कार्नेवन आ रहा है, तो हम स्विच नहीं करेंगे, मैं इसे पीक ही देता हूँ। इसका डिफेंस ज़्यादा है। ओके, इस बार एम्बर, एक और एम्बर में फेंट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट पोकेमॉन कौन सा है इसका। तो नेक्स्ट एक लिफियन है, तो मैं इसे पीक देता हूँ। ऐसे लिफियन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इसने हमारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो मैं क्रोगंक को निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो एक पॉइजन टाइप भी है, तो मैं पॉइजन स्टिंग का यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छे, इसका ये देखते हैं, ये अगर पॉइजन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके, जब तक हम इसका ही यूज़ करेंगे जब तक ये पॉइजन नहीं होता। ओके, हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे मूव का यूज़ करेंगे, तो मैं फेंट अटैक का यूज़ करता हूँ। ओके, इसने फुल हील का यूज़ किया। इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों, ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में है इसलिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से फेंट अटैक का ही यूज़ करूँगा। तो हमें शायद अपने पोकेमॉन को रिवाइव करना चाहिए, वरना ये हमें बहुत परेशान करेगी। तो मैं इस बार अपने फ्लेचिंडर को रिवाइव कर लेता हूँ। तो हमारे पास रिवाइव है कि नहीं देख लेते हैं। तो एक रिवाइव है, बहुत अच्छी बात है ये। ओके, हमारा पोकेमॉन फेंट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो मैं एरॉन के साथ फ़िलहाल बैटल करता हूँ। तो सबसे पहले हम पोकेमॉन को हील करते हैं अपने। नो प्रॉब्लम। तो इस बार फ्लेचिंडर, और हम इसे पीक देंगे।
ओके जब तक देंगे शायद ये इस बार फेंट हो जाएगा। बहुत अच्छे, और हमने इसे हरा दिया। सो यू रियली आर स्ट्रॉन्गर देन माई मदर्स नेचर, वेल टेक दिस, यू डिज़र्व इट। तो हमें एक स्टीम बैज मिला है और एक टीएम भी मिलेगा। अब हमें देखते हैं ये क्या है, ये गीगा ड्रेन है। ओके अच्छी बात है, तो चलते हैं अब बाहर। वैसे गीगा ड्रेन एक बहुत अच्छा मूव है, देखते हैं हमारा कौन सा पोकेमॉन वो सीख सकता है। तो सबसे पहले हम अब पोकेमॉन सेंटर जाएंगे। तो गाइज़ मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज़ मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है, तो चलते हैं अब आगे। हमें अब राइट में जाना है, शायद यहीं पर। तो ये है रूट 7। आई फाइनली कॉट यू अप। तो ये कौन है देखते हैं। तो ये वही है डार्लो। सो इट सीम्स लाइक यू गॉट द बैच टू। ओके तो इसने पहले ही कहा था कि ये हमसे बैटल करने वाला है। नो प्रॉब्लम, कर लेते हैं इससे बैटल। तो इसका पहला पोकेमॉन है टाइनमो, तो हमें स्विच करना होगा वरना ये हमारे पोकेमॉन को फेंट कर देगा। तो मैं क्रोगन को निकालता हूँ। ओके नो प्रॉब्लम, पैरालाइज से तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे रिवेंज देता हूँ। ओके क्रिटिकल हिट लगा और हमारा पोकेमॉन ही फेंट हो गया। नो प्रॉब्लम, मैं एरन को निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इसे टेक डाउन देता हूँ। ओके ये पहले हमारे पोकेमॉन को पैरालाइज करता है, फिर उन्हें धीरे धीरे फेंट करता है। तो इसने हमारे 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया। तो इस बार हम किसे निकालें। तो मैं रिस्क लेने वाला हूँ अभी, और मैं डिवॉट के साथ इसे रेजर शेल दूंगा। बहुत अच्छे, डिवॉट ने इसे फेंट कर दिया। तो फ्लोटजेल आ रहा है, तो मैं पिकाचू को निकालूंगा और हम उसे शॉक वेव देंगे। आप देख सकते हो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, ये अपने फाइनल एवोल्यूशन में है इसलिए इसका डिफेंस भी बहुत ज़्यादा है। इसने हमारे पोकेमॉन को बस एक ही बार में फेंट कर दिया। ओके अब किसे निकालें, अब डिवॉट के साथ देखते हैं। तो हम इसे फ्यूरी कटर देते हैं। ओके रेजर शेल का देखते हैं कितना असर होता है। ओके कुछ असर हुआ ही नहीं। ओके बहुत, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है और इस बार तो हमारा पोकेमॉन ही फेंट हो गया। नो प्रॉब्लम। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैंने उसके सभी पोकेमॉन को फेंट कर दिया। अब सिर्फ कुलावा ही बचा है, तो हम इसे रेजर शेल देंगे। ये अपना डिफेंस बढ़ा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इसके सभी पोकेमॉन लेवल 25 के ऊपर है, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नो प्रॉब्लम, फाइनली तो हरा दिया हमने इसे। हाउ कैन यू ऑलवेज विन, इट इज स्टार्टिंग टू गेट अनोइंग, but still thanks for being someone I can compete with. I think for now I'll drop this goal of mine to win against you. There are other things I know we should focus on. Team White is probably plotting somewhere sinister which we don't know yet, so we need to get stronger to face them and collect gym badges to complete the league. ओके तो सबसे पहले अब हम पोकेमॉन सेंटर जाएंगे। मेरे पोकेमॉन की कंडीशन बहुत ख़राब है। ओके तो सबसे पहले हील कर निकलेंगे, हमें उसी रूट पर आगे बढ़ना है। ओके हमारे पोकेमॉन फाइनली हील हो गए हैं, तो चलते हैं अब नीचे। वापस से उसी रूट पर हमें जाना है। ओके तो मैं इस ट्रेनर को स्किप करने वाला हूँ, मैं सेपरेटली इससे आकर बैटल करूँगा बाद में। ओके वाइल्ड पोकेमॉन हमें परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। मैं रिफल का भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम ग्रास में से चलने वाले हैं इसलिए। ओके सुपर रिफल मैंने ख़रीद लिया था, मेरे पास 5 है, मे भी इतना इनफ है। ओके तो चलते हैं यहीं से ऊपर। तो हमें इसको भी स्किप करना है। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। आई एम द डे केयर मैन, आई हेल्प टू टेक केयर ऑफ द प्रीशियस पोकेमॉन ऑफ ट्रेनर।
इफ़ यू कुड लाइक मी टू रेस, तो हमें अभी तो नहीं कोई पोकेमॉन को रेस करना। तो यहाँ पर क्या है, आई एम द डे केयर लेडी, वी कैन रेज ऑफ योर पोकेमॉन। ओके, तो अभी तो हमें कोई पोकेमॉन को रेज नहीं करना। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। ये बग कैचर क्या कहता है, आई एम रशिंग अराउंड हेयर बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर बग। ओके, तो हमें अब वापस चलना चाहिए, हमें राइट में जाना है। तो यहाँ पर एक ब्लैक बेल्ट वाला है, तो हमें इसे भी स्किप करना है। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। मैं इनसे सेपरेटली बाद में आकर बैटल कर लूँगा। ओके, चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर और ट्रेनर है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं इनसे छुप कर चलूँगा। ओके, मैं इसे भी स्किप कर दूँगा। बहुत अच्छे, में हमने उसे स्किप कर दिया। तो आप देख सकते हो वहाँ पर टीम वाइड के कुछ ग्रंट रुके हैं। देखते हैं अब उनका नया प्लान क्या है। तो यहाँ पर ऊपर एक और रूट है, देखते हैं ये क्या है। ये रूट 5 है। आई एम सॉरी बट देर आर सम कंस्ट्रक्शन ऑन रूट 7। तो हमें अब यहीं पर जाना चाहिए। Everyone remember our mission, right? We got to take over the ship dock before the other group arrive. Let's go. We don't want to make the boss angry. We are Ash. तो अब लॉरी यहाँ पर आ गई है। ये सेप्टाइल की ओनर है। दिस इज़ बैड, वेरी बैड। While I was patrolling from the sky, I saw a huge ship heading toward One-Pi City. I asked around and the ship isn't authorized, so it's very likely that is team-wide. What? You saw grunts marching in to take over the dock? I can't believe this. What are they planning? A takeover, Ash? I know I am not supposed to ask something like this from a kid, but I need your help. We need to drive team-wide out of the city before it's too late. You got it? Good. देयर इज़ नो टाइम टू वेट, लेट्स गो। ओके, चलते हैं। अब शायद हम नेक्स्ट सिटी में आ गए हैं और रिफल का यूज़ तो अभी नहीं करना हमें। तो ये है रूट 7। तो इन्होंने पूरी सिटी को बंद कर दिया है। ओके, तो ये कौन है? हु द हेल डू यू थिंक यू आर? दिस साउंड एग्जैक्टली लाइक डार्लो, इट्स केम फ्रॉम द डॉग। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस सिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे और देखेंगे कि टीम वाइड ने इस सिटी में क्या किया है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।